Thank you, Dr. Anup Khan, for giving me the brief introduction. I have been assigned to deliver or to discuss the concepts of data analysis or statistical analysis that is very important for research. If you are doing research, then are you comfortable in English or bilingual? So in that situation, I will try to be in English, but I will translate or sometimes I will put Hindi. First of all, in this program, this is my brief. एक मिनट बंद हो जाएगा ये इधर का दो भाई नाउ आई थिंक क्लियरली विजिबल my name is Ravi Pandey and R Bayesian in Southeast Asian I am known as because I did throughout my life in the Bayesian paradigm, I will let you know that what is the meaning of Bayesian statistics. Most of the participants from business administration background. So if we are doing nowadays in business administration domain, a lot of work or research work is being carried by Bayesian statistics. R is not for Rajiv. I will let you know what is the meaning of R after this prospect. My email ID is there and my most efficient way to contact me. मैंने यहाँ पर एक अपनी वेबसाइट हम लोगों का है डेटा एनालिटिक्स स्कोर ग्रुप DACG.in. This will be a very helpful website. I am a group leader of this group, and this website was launched by this department only in 2017. And this I will show you the internet है यहाँ पर चलो अभी बाद में दिखा देंगे and lot of professors of different domains sociology psychology कल प्रोफेसर खान आए थे अलीगढ़ से he is also one of the member if you have any problem for the analysis point of view आपका कोई भी डेटा है जिस भी डोमेन में आप रिसर्च कर रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमको कौन सा स्टैटिस्टिक्स का टूल लगाना है तो आप क्या करते हैं आइदर यू अप्रोच टू स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट या कोई किताब विताब या सॉफ्टवेयर में कैसे प्रॉब्लम आती है वो आप देख लेते हो इन दैट सिचुएशन ये वेबसाइट हम लोगों ने 17 में बनाई थी इन द मेंटरशिप ऑफ आवर एक्स डीन ही नो मोर प्रोफेसर आर के सिंह सर और आई एम group leader and there are 21 professors all across the India of different fields, computer science, psychology, sociology, anthropology, they are in this. Why I am giving you this? If you go to the contact us of this website, contact us में आप जाइए अपना email ID डाल दीजिए अपना वो क्या कहते हैं ग्रुप है कि आपका डेटा यदि कॉन्फिडेंशियल नहीं है if your data is not confidential you may attach a 5 MB file with that and ask the problem कि कौन है भाई you just write down your email ID of the contact us and then you write down the problem this problem I am facing
in solving our data. And if your data is not confidential, you may attach and send it, submit to this website. Within 10 days, your problem will be diverted to the expert. साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजी के खान साहब के पास चली जाएगी, बायोलॉजी की प्रॉब्लम है तो किसी मेडिकल प्रोफेसर जो इस वेबसाइट्स के हैं, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर है उपरा जी एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास. दिस इज द सिस्टम है. And within 10 days, you will get the best statistical tool which is to be used for. And you will be surprised to know that we have resolved more than 40,000 solutions all across the globe. Charlie sir, without taking a single pay. एक पैसा हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं, जस्ट आप देंगे, आपको 10 दिन या 12 दिन बाद जो है आपका सोल्यूशन आपको कहीं जाने की जरूरत. नंबर 2, if you I will show you in the home page, there is a सबटाइटल. वैसे तो हमारे आर्टिकल्स हैं और भी जो हमारे साथ के प्रोफेसर हैं, आईएसआई में प्रोफेसर अथानु विश्वास है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसके भी आर्टिकल्स अगर आते रहते हैं, वो दैट इज वो तो आप अपने स्टडी. इसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस आई विल शो यू. जैसे ही आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का कोई फॉर्मूला हो या कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, पी वैल्यू हो, तो आप लोग पी टेस्ट लगाते हैं, आप उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, जस्ट क्लिक, उसको क्लिक करिए तो वो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा. डिस्क्रिप्शन से भी यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो वी हैव अटैच्ड ए शॉर्ट वीडियो, so you can see that video is there. So this will be very helpful. I will show you in the step of releasing. I have delivered more than 3,728. Last lecture was in Giri Institute, 25th को दिया था. These are the domains: statistical computing, Monte Carlo, Markov chain, machine learning, algorithm, simulation, Bayesian predictive modeling, and how to RTI सूचना का अधिकार. आप लोग जानते होंगे आजकल बहुत उन्होंने तो. I am management trainee in UP government. I used to deliver various lectures to IAS and PCS administrative officers. And these are the softwares, SPSS, Stata, Python, big data analysis. And presently I am also engaged for the data consultant in government administration. Just read these slides. For making a program interesting, always remember that. आप सब लोग जाते हो अपना पीएचडी का प्रेजेंटेशन देते हो या फंड्स के लिए आप लोग डिफरेंट फंडिंग एजेंसी डीबीटी है, सीएसआईआर है, फार्म एजेंसीज को यूजीसी है, आप लोग तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए है एंड यू वांट टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट या पीएचडी का वैकेंसी एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें ये 4-5 चीजें मैं जरूर हमेशा शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को. इफ योर फैक्ट्स आर डल, जो चीज मैं बोल रहा हूँ बहुत डल होगा तो आप लोगों में बड़ा मजा, या आप भी क्लास में फील करते हो. इफ योर फैक्ट्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. नंबर 2, इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तभी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, स्टिमुलेट कर देता है. नहीं तो क्या मैं बोल रहा हूं आप सुनते रहिए. इसीलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास, वैसे तो क्वेश्चन आवर बाद में होता है, क्वेश्चन आंसर आवर जो है सेशन खत्म होने के बाद, लेकिन मेरे क्लास में बीच में बोलने में प्रतिबंध नहीं. आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता हो, जस्ट आप हैंड रेज करिएगा, आई विल कम टू यू और उसको हम लोग बीच में डिस्कस कर लेंगे. दैट इज द मेन थिंग. और यही आपका भी होना चाहिए. पुअर परफॉर्मेंस किल्स इंटरेस्ट. इफ योर परफॉर्मेंस इज पुअर, then that will interest to the audience. यदि मेरी
समझाने का तरीका या मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका पुअर है, खराब है, तो उनको एक्सपर्ट्स को समझ लेता। If there is a complexity, then that will lead to confusion, not interest. And it is a very common that monitoring a listener, you can't have to. So this slide is very important for research experts. Now, I will just give you in the first half, the basic concepts while using statistics in research. Number one, what is statistics? हम लोग ये अक्सर कहते हैं कि जो आप लोगों ने भी पढ़ा या किताबों में या हाई स्कूल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स है, कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. दिस इज नॉट. The purpose of statistics is to develop and apply methodology for extracting useful knowledge from both experiments and data. जो आप लोग सोशल साइंसेस के लोग हैं वो सर्वे करते हैं, सर्वे से ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ऑब्जर्व किया, केमिस्ट्री या फिजिक्स या इंजीनियरिंग लैबोरेटरीज में आप लोग लैब में काम करते हैं तो लैब से डेटा आता है. तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को से कैसे हम इंफॉर्मेशन को या को एक्सट्रैक्ट करें, दिस वाज द ओल्ड डेफिनेशन. बट माय ओपिनियन इज टोटली डिफरेंट. This is my opinion. It is neither really a science nor a branch of mathematics. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या टूल सब्जेक्ट्स हैं? जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी, कहते हैं ना फिजिक्स, स्टैट्स, मैथ्स या इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स लेके 3 सब्जेक्ट. जस्ट आई हैव ट्राई टू इंटरेक्ट यू. आप लोगों से आपकी नॉलेज क्या कहती है कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं? ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, बगल में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. एनीवन? They are not secrets. Basically, the whole science in the universe has been categorized into two: social sciences and fundamentals. In comfortable? Should I continue? Social sciences and fundamental sciences. सोशल साइंसेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, लाइक दिस. ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स उसी में आते हैं. फंडामेंटल साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं. Whenever fundamental scientists observe some data in their laboratories or social scientists collect their data in fields, तो उनके पास डेटा कलेक्ट हो जाता है. आप लोग भी यही करते हैं. आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू एनालाइज इट. देन दे अप्रोच मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन. तब आप गणितज्ञ और सांख्यिकी के पास पहुंचते हो कि भैया ये डेटा है, हमको एनालाइज करें. तो बेसिकली देयर statistics and mathematics are not pure subjects. They are tool subjects. जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ. आप लोग ये टू व्हीलर से आए हैं अभी, अधिकतर लोग 4 नंबर स्टैंड पे आपने खड़ा किया होगा. जब आप यहाँ से लौट के जाएंगे, आपकी व्हीकल खराब होता है अक्सर उन लोगों के साथ. और आपने क्या करोगे? आप जो साइकिल स्टैंड वाला है उससे पूछोगे कि यहाँ पर कोई मैकेनिक का दुकान है, तो वो बता देगा कि आप इतने 500 मीटर पे चले जाओ, तो आप वो करके उसको ले जाते. वो जो रोड शॉप मैकेनिक है,
शॉप खोला हुआ है, वो 150 रुपए लेता है, तो हर बार टूल्स को यूज करके वो जोड़ता है, और आपकी गाड़ी कहती है कि आज आप अच्छे से घर पहुंच जाएंगे, 10-15 किलोमीटर जाम हो गया आपको। यस्टरडे आपने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, तो आपके फादर ये बोलते हैं या गार्जियन ये बोलते हैं, भाई रोज रोज आपको यूनिवर्सिटी जाना है, और आपकी टू व्हीलर खराब हो गई है, तो इसका जो घर के पास वर्कशॉप है, उसको एक दिन वापस से चले जाना, कुछ दे दो, 2,000 रुपए लगेगा या 1,000-2,000 रुपए लगेगा, पूरा बढ़िया ओवरऑलिंग रहता है, सर्विस करो। एक घर के पास वाला जो वर्कशॉप था, हमने वहां टू व्हीलर को दे दिया उसने। 5-6 महीने बहुत बढ़िया चली गाड़ी, तो शाम को गए, ले लिया, 2,000-3,000 दो उसने दे दिया। उसके बाद फिर प्रॉब्लम आई, तब हमारे गार्जियंस या हमारे सीनियर हमको ये सजेस्ट करते हैं कि इस व्हीकल को अब आप होंडा की यदि कम जो ओरिजिनल सर्विस सेंटर है वहां पर लेकर जाइए। अब वहां से जब ठीक होकर आती है, तो साल भर की गारंटी है, 1.5 साल। ये जस्ट एग्जाम्पल। तो अब आप ये देखिए, हमारी एक ही प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को एक टूल्स यूज करके रोड साहब मैकेनिक ने भी ठीक कर दिया, एक घर के पास वर्कशॉप वाले ने भी ठीक कर दिया, और तो बेस्ट, और जो बेस्ट टूल्स यूज किए गए वो हमारे ओरिजिनल होंडा या मारुति जो भी कार है उसके द्वारा। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, जिस ट्रेन से उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और दिल्ली से जब आप लखनऊ वापस आए तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द एवरेज? बताता है, 40 की स्पीड से गए आप और 60 की स्पीड से वापस आ गए, औसत एवरेज स्पीड क्या हो? सबने क्या किया, 40 प्लस 60 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड, दिस इज यू हैव यूज सिंपली द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर दिया, यहाँ पर हार्मोनिक मीन यूज। तो मैथमेटिशियंस हैज डेवलप टूल्स। जैसे यहाँ पर आप लोग यदि लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में एक लाल बाग एरिया है, टूल्स मार्केट कहते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के पेचकस, प्लास, रेंज, इस तरीके के अपने हम लोगों के टूल्स मिलते हैं। अब गए, या हम लोग गए परचेज करने की, हमें ये स्पेसिफिक टूल चाहिए इस चीज को पंखा खोलने के लिए, तो वो 4 प्रकार का टूल बताते हैं। आपका पंखा किस प्रकार का है, आपका डेटा किस प्रकार का है, अर्थमेटिक मीन भी आप पढ़े हैं, हार्मोनिक मीन भी पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़े हैं, लेकिन विच टूल इज टू बी द बेस्ट फॉर एनालाइजिंग योर here in the whenever the variable is changing, in that situation we use harmonic। तो मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट टूल्स बना दिए, ये इक्विपमेंट है, इस टूल से आप ये काम, लेकिन इसी तरीके के 5 टूल्स उसने बना दिए, कौन सा टूल किस सिचुएशन पे यूज करना है, ये स्टडी। तो दिस इज माई, आई एम जस्ट गिविंग द माई बैकग्राउंड, एंड दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री, थोड़ा सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम बता दे रहे हैं। स्टेटिस्टा वर्ड या स्टेटस वर्ड जिसका मतलब होता था पॉलिटिकल स्टेट, उससे लिया गया है लैटिन से। शेक्सपियर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, ये सब प्लेज वगैरह होते हैं। इन्होंने हैमलेट प्ले में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड को 1602 में यूज किया। Applications of statistics was very limited by रोमन एम्पायर्स। फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों को देखने को लिटरेचर मिला है, वो सबसे ज्यादा उस समय के जो रोमन एम्पायर्स होते थे, फर्स्ट स्टेट्स जो डेटा गैदर करते थे ऑन द साइड, उनके एम्पायर की पॉपुलेशन क्या है, उनका एग्रीकल्चर लैंड क्या है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उनका वेल्थ एसेट्स क्या है, उनकी, प्लीज बी सीटेड, वेल्थ क्या है, तो दिस वहां से इसकी हिस्ट्री है। अब 20th सेंचुरी में तमाम स्टडीशियंस आए जिनके फॉर्मूले आप लोग पढ़ते हैं या टूल्स यूज करते हैं, और आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए, जिसका सेकंड हाफ पे हम एक छोटा सा डिस्कस करके जाएंगे।
कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गया, सारा काम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इन सॉफ्टवेयर पे, वो भी मैं आपको, दिस इज द टाइमलाइन। यहाँ पे बिफोर 17th सेंचुरी फिलोसफर्स हुए थे, इन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस कोई का आइडिया नहीं दिया था, क्वालिटेटिव। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी वर्ड सुना होगा, प्रायिकता। आप लोग अक्सर हमेशा अपने डेटा एनालिसिस में पी वैल्यू निकालते हो, देखा है, सुना है आपने? प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ, दिस वाज नॉट दैट। ये तो फॉर्मूला है जो मैथमेटिशियंस ने दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी इक्वल टू 1/2 होगी इफ यू क्रॉस एक वन, ठीक है ना? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। इफ यू क्रॉस एक वन, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक बार ही आ सकता है, टोटल हेड है, टेल आ जाता है 1/2। या छत गिरेगी या नहीं गिरेगी, probability of falling down of this ceiling is what? Use that formula of mathematician. क्या होगा? यदि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कल से आप टाइम से आएंगे, अदरवाइज 1/2, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 1/2 होगी। तो यहाँ पर भी तो दो ही सिचुएशन आ रही है, या तो छत गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गिरने की? लगा दीजिए मैथमेटिक्स का टूल। If we say that the probability of falling down the ceiling is 1/2, it means that is it possible? क्या हम ऐसी छत के नीचे बैठना पसंद करेंगे जिसके गिरने की प्रोबेबिलिटी 50% हो? नॉट एट ऑल। तो देयरफॉर द, आप लोगों ने एरिस्टोटल एंड प्लेटो का नाम सुना है? दे एक कौन थे? फिलोसफर थे। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज सर्टेन बिकॉज ऑफ गॉड। हम लोगों ने ईश्वर को देखा नहीं है, अल्लाह कहिए या गॉड कहिए या जेसस कहिए, वॉट एवर आज हमारा इंटरेक्शन आपसे होना था, दैट वाज सर्टेन। एवरीथिंग इज सर्टेन इन ऑप्शन। हो सकता हो मैं आज यहाँ से अभी शाम को लेक्चर देने के बाद डिपार्टमेंट से जाऊँ, आईटी कॉलेज में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो आज भी नो मोर। कहिए, देखिए, अभी एक 2 साल पहले की 1.5 साल पहले घटना हुई थी कि एक मिलिट्री के थे कैप्टन, उनका हेलीकॉप्टर त्रिवेंद्रम के पास क्रैश किया, पूरी फैमिली 11 लोग। क्या है, नाम भूल रहे हैं, ब्रिगेडियर। क्या वो ऐसा सोच के चले थे कि हमारा वहां पर लैंड कर? अक्सर अक्सर हम लोगों के लाइफ में होता है। तो इट वाज, ये बड़े जिद्दी टाइप के फिलोसफर्स थे, एरोगेंट थे, इन्होंने बहुत अच्छी फिलोसफी लिखी। इनका ये मानना था कि जो कुछ भी सर्टेन इस वर्ल्ड में, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है, कोई हम लोग हनुमान जी कह देते हैं कि हनुमान जी की कृपा हो गई कि आज पांडे सर की क्लास अटेंड करने को मिलते। यही तो होगा ना, जस्ट ऐसे ही इंटरेक्शन होता है। अब इट्स सर्टेनिटी को रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अनसर्टेन। तो विपिन रावत का बताया या मैंने अपना एग्जाम्पल बताया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, वी आर लिविंग इन अनसर्टेन वर्ल्ड एंड ट्राई टू फाइंड सर्टेनिटी। जब हम यहाँ से भी कार या आप टू व्हीलर लेके जाते हो तो आप देख लेते हो पेट्रोल है, एक्सेलेटर काम कर रहा है, ब्रेक सही काम कर रहा है, तब आप भाई। तो हम लोग जो है, जैसे सवेरे आज हमें क्लास लेना था तो हमने, ऐसे 10 बजे मैं आता हूँ तो अपना 9:30 पे ब्रेकफास्ट लेता हूँ, लेकिन सवेरे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट अगर या कैलोरी ले ली तो दैट कि हमारा काम चल जाएगा। We try to be a certain, find out the certainty in a situation of
And this was the first definition given by Aristotle and Plato during before 17th century. And in 17th century, to find the certainty in a situation of uncertainty. अनिश्चितता की स्थिति पे निश्चितता को ज्ञात करना ही राइट। ये मैं जब सर्विस कमीशन में आईएएस और आईएएस के चे आते हैं तो उनसे यदि वो कह देते हैं मैंने स्टैटिस्टिक्स से मैथमेटिक्स पढ़ी है, पहली डेफिनेशन मैं उनसे यही आप लोगों के नॉलेज से। लेटर ऑन वन मोर फिलोसफर केम, ह्यूम, नाम सुना है आपको? ह्यूम ने इस डेफिनेशन को बदल चेंज कर, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, एक राउलेट गेम से उन्होंने समझाया था स्टैटिस्टिक्स में जनरल, लेकिन आई एम जस्ट गिवन माय ओन एग्जांपल। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है अमीनाबाद, आप लोग जानते हैं ना, लखनऊ के जो लोग नहीं होंगे तो बहुत क्राउडी एरिया। दिन के 2 बजे, आजकल तो खैर गर्म है, वैसे भी वहां पर कितनी भीड़ एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम 10,000 की। मतलब साइकिल या व्हीलर को चलाना मुश्किल है, पैदल निकलना भी। वहां पर उस 10,000 की भीड़ में मंगलवार को, जैसे कल लगा हुआ था मेला रेडी कहते हैं, दिन के 2 बजे मिस्टर ए ने अपनी जेब से निकाली 5 मीटर के डिस्टेंस से मिस्टर बी को मर गया। भाई जिसको कितने पास से गोली लगेगी, पिस्टल की 2 गोली फायर किया, मर गया, वो वहीं पे डेथ। लोगों ने ये कहा कि बी की मौत अमीनाबाद की बाजार में 10,000 पब्लिक के बीच में गोली लगकर लिखी हुई थी, इसलिए मर गया। यही, और हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। हुआ क्या, भीड़ ने, ये भाग नहीं पाया, इतनी भीड़ थी, उसको पकड़ लिया क्राउड ने, ए को कैप्चर कर लिया और पुलिस को हैंड ओवर, उसको जेल 8-9 महीने उसका ट्रायल चला। एंड आफ्टर 8 मंथ्स जूरी गेव ए डिसीजन, या जूरी जो जज था उसने जो है ये डिसीजन दिया कि एट शुड बी एंड टिल डेथ, मतलब फांसी की सजा। अब प्रश्न ये आता है, बी की मौत ऊपर वाले ने लिखी थी, ह्यूम ने एरिस्टोटल प्लेटो से पूछा कि बी की मौत मैं मानता हूं अमीनाबाद में दिन के 2 बजे पिस्टल की गोली लगकर 10,000 की पब्लिक में होनी थी, ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ था, इसलिए। लेकिन ए को कौन मौत दे रहा है? वो जज या जूरी। क्या वो जूरी गॉड हो गया? क्वेश्चन यहां पर है। तुमने कहा नो। देन द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज द मॉरल सर्टेनिटी टू फाइंड इन ए सिचुएशन ऑफ फर्स्ट। हमारी नैतिकता बन जाती है। ऐसा नहीं कि आप अभी यहां से जाएं अपने घर, एक एक मारी गाड़ी स्टार्ट हो गई लेके चल, आपकी मॉरलिटी है कि आप उसको टेस्ट, आप यदि आप जाएं और गूगल पे आजकल तो आप लोग सब लोग देख लेते हैं, मॉरल सर्टेनिटी और बर्नूली ने सबसे पहले अपनी उसकी किताब है, उसके 4th पेज में ऊपर से 4थी लाइन पे ये वर्ड, और विकिपीडिया पे आप मॉरल सर्टेनिटी। तो दिस डेफिनेशन वाज चेंज, जो हमने बताई थी, टू फाइंड द सर्टेनिटी इन ए सिचुएशन और फाइंड द मॉरल सर्टेनिटी इन ए सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। देन लेटर ऑन जो आप लोग पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी थ्रू गेम्स एंड चांस, नॉर्मल कर्व की बात भी हम लोग करेंगे, रिग्रेशन थ्रू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर क्वार्टलेट आई, गार्टन आए, पियर्सन, इन लोगों के नाम से पियर्सन को रिलेशन निकालते हो, ये सारी चीजें दी। 17th सेंचुरी के बाद 1920 पे ये नॉन पैरामेट्रिक स्पीयरमैन, ऑस्कर वॉलिस, इन लोगों का दिया। कैंडोल आई 20th सेंचुरी में, डनेट ट्वेल्थ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। These are the some picks of renowned statisticians, James Lind, Carl Pearson, Thomas Rees, Harry Simon, and William Jackson. इस आदमी को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। He is supposed to be R.A. Fisher, रोनाल्ड फिशर, जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन पे
इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिन्होंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट किया, जो आप लोग भी अपने सर्वे में करते हैं। यही तो आप काम करते हो कि आपका कोई एजम्पशन होता है, डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर, और इस व्यक्ति को मैं कभी भी फादर नहीं मानता। मेरा पूरे वर्ल्ड में झगड़ा हुआ है, जब भी मैं लेक्चर देता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर सोशियोलॉजी से कोई है या साइकोलॉजी से पार्टिसिपेट, सोशल वर्क नहीं। इस फिगर को आप लोग अधिकतर किस मेजोरिटी के पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च किस बैकग्राउंड दो, इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स वाले इनको नहीं पहचानते ये फिगर जो है, एडॉप्ट कर क्लेम। He was Belgium mathematician, astronomer, social scientist. इस व्यक्ति ने 1834 से वो सारी किताबें या फॉर्मूले या जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो दे दिए थे, जिसके 100 साल बाद फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप यदि इंटरेस्टेड हो तो हमारी लाइब्रेरी में ऊपर क्वाड्रेट की एक किताब रखी हुई है, जिसमें 1834 यानी जितनी सोशल साइंसेस की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, सारी डेटा एनालिसिस सेटिंग हो गई। तो वाई शुड इसका नाम इतिहास के पन्ने में खत्म हो गया, नो रिकॉग्निशन। माय पर्सनल बिलीफ है कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ही। इसको आप लोग जानते होंगे इस लेडी को, अच्छा बचपन से देखा होगा, किताब में पढ़ा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वाज द फर्स्ट लेडी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आजकल हम लोग करते हैं ना, एक गोला बना के इतना परसेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इतने साइकोलॉजी के, इतने स्टैट के, या इतने परसेंट ग्रोथ इतना कंपनी का हो रहा है, लाइक दिस। सी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर सी गिव दिस लाइक, इट इज नोन एज मोर्स डायग्राम, गुलाब का फूल की तरह। देखिए इसमें अप्रैल 1854 से मई, जून, जुलाई या अगस्त में बैटल्ड एंड नॉन बैटल्ड का इसने ये डायग्राम बनाकर दिया। फर्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय दिस, जो हम लोग डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कंटिन्यू, तो देयरफॉर दिस लेडी गिव द फर्स्ट डायग्राम। और आज आप लोग जाकर देखिएगा रोज डायग्राम, यू विल गेट, जो आजकल हम लोग बार डायग्राम या आप लोग इकोनॉमिक्स वाले सोशियोलॉजी वाले यूज करते हैं, ये इनको कभी आप नाउ व्हाई स्टडी स्टैटिस्टिक्स, आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पे स्टैटिस्टिक्स, that is the most important, understanding the language of a statistician who facilitates communication and improve problem solving। आप इसीलिए तो यहाँ पर आए हो, फिर कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी का आइडिया हो जाएगा, कुछ स्टैटिस्टिक के टूल्स हमको पता चल जाएंगे, तो हम अपने जाके रिसर्च करते रहेंगे और स्टडीज करेंगे। और कंप्यूटर स्किल्स आपको थोड़ी बहुत मैं बता दूंगा, अभी आने वाले जो स्पीकर्स हैं वो आपको टेक्निक्स बता देंगे, तो कंप्यूटर स्किल्स। Now, very important aspect is that why it is essential for your research. That is because of perception. Just I am showing this slide. Here I have written two words of English having three letters in each. अंग्रेजी के दो शब्द मैंने लिखे हैं, एक ये ऊपर लिखा हुआ है और स्मॉल ए को ओरिएंट करने के लिए है, और एक नीचे लिखा। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिन
आपको दिखाई पड़ जाए वो सब हाथ खड़ा करेंगे आपस में, कहेंगे नहीं। I have written two words of English having three letters in each. जिनको किसी को नहीं दिखाई पड़ा, एक दो। नो नो, आई एम नॉट आस्किंग। यदि आपको दिखाई पड़ गया है, यस, टू थ्री फोर, नाउ देर आर ओनली फाइव सिक्स स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, बट लोगों को ऑब्जर्व, जस्ट आई एम स्विचिंग ओवर दिस, नाउ इट इज क्लियर। एफ एल वाई, फ्लाइंग, और नीचे लिखा हुआ है टाइम। क्यों? जब हम प्रीवियस स्लाइड पे चल रहे थे, जब हमने आपसे पूछा तो आप कंसंट्रेट किस पे कर रहे थे? ब्लैक पोर्शन पे, ये पी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, फिर ये एच जैसा दिखाई दे रहा है, एंड ये उल्टा कुछ बना हुआ है, या ये यू कहें या वाई कहें, यू आर फोकसिंग ऑन दैट। अक्सर यही हम लोगों के रिसर्च में भी होता है कि खूब अच्छी अच्छी थीसिस बना लेते हैं, ऊपर बॉडी लिख देते हैं, अंदर क्या कंटेंट होता है उससे कोई। वी हैव टू फोकस ऑन द बैकग्राउंड। सर ऐसा प्रोफेसर आ जाता है कुछ सूट वूट टाई पहन के, तो बढ़िया अंग्रेजी का, या कोई मैडम ब्यूटी पार्लर से बाल बाल खूब डाई करा के अपना झुमका उमका पहन के आ गई और लेक्चर देने लगी, क्या बढ़िया मैडम, यही तो कहते हैं ना हम लोग। तो दैट इज नॉट देयर, वॉट एवर सी और प्रोफेसर है और स्पीकर इज सेइंग, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वी शुड कंसंट्रेट ऑन द व्हाइट पोर्शन की, उसका बैकग्राउंड क्या, इंस्टेड ऑफ। और आज के जमाने में जो परसेंटेज आया, यही परसेंट सभी ऑडियंस में ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे मिलता है जो हम लोग कर रहे हैं। एक और स्लाइड में परसेप्शंस की दिखा रहा हूं। माय वाइफ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी, माय आंसर इज क्लियर, ठीक है ना, व्हाट आई वांट टू से, I am repeatedly saying yes, 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 yes. How many times? I will satisfy you. This is the just research methodology. Yeah. For example, by three bars, this one is saying that it is three, but that one is saying that there are two. हमारा रिसर्च स्टूडेंट ये बोलता है, हमारा सुपरवाइजर जो है वो दूसरा बात, तो भी रिसर्च स्टूडेंट इधर है और सुपरवाइजर उधर है, यही डिस्प्यूट होता है रिसर्च methodology. We should cut the perceptions in this way that we should concentrate on this. ऐसा ना हो जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे भी दिखाई देना चाहिए, वही रिसर्च का हमारा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग परसेप्शन से हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। एक ये स्लाइड साइकोलॉजी से है, कोई साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में हम लेक्चर देते हैं, या कल खान साहब आए थे, इनके यहाँ अक्सर लेक्चर देने जाते हैं, तो इनको इन लोग बहुत करते हैं काम, फंडामेंटल इंटरथायरोबी बोलते हैं, जो विंडो है। देयर आर फोर पार्ट्स इन एवरी ह्यूमन, ABCD, A for arena, B for black spot, C for closed or packed, D for dark spot। आप सब इन लोगों के अंदर, ये वो लोग होते हैं, हमें अपने बारे में तो बहुत जितना मालूम है उतना ही दूसरे भी मेरे फ्रेंड का। बी मीन्स ब्लाइंड स्पॉट, नॉट नोन टू सेल्फ, मुझे खुद नहीं मालूम लेकिन दूसरे मेरे बारे में बहुत। सी, हमको तो मालूम है लेकिन दूसरे नहीं जानते हैं। और डी, ना तो मैं जानता हूं मैं क्या हूं या मेरी नॉलेज क्या है, दूसरे भी। हम लोगों की स्टेज जो है, यहाँ मैंने इसको रिवाइज कर दिया, अंग्रेजी की एक प्रोवर्ब है, इफ यू डू व्हाट यू हैव डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी। जो इसको, इस प्रोवर्ब को मैंने एक्सटेंशन दिया है, इफ यू थिंक व्हाट यू हैव थॉट
यानी कि आप वही सोचते रहे हैं जैसा सोचते आए हैं, तो नतीजे में वही मिलेगा जो आपको मिलता है। आपको अपनी रिसर्च का या इस वर्कशॉप का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी मदद से जो भी आपको बताया जाएगा, आपको अपनी आइडियोलॉजी बताएं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन की। एंड योर जर्नी शुड बी फ्रॉम डी टू। आप लोगों को इसके विद ब्रैकेट्स हमने लिखा हुआ है, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड नेसेसरी थॉट्स एंड नेगेटिव तो वेस्ट थॉट्स। एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में कितने थॉट्स अपने इस माइंडसेट पे जनरेट करता है? नॉर्मल मैन कैन जनरेट 35,000 टू 40,000 थॉट्स थ्रूआउट ए डे। एक दिन में सुबह जब आंख खुलती है से लेकर रात को आंख बंद होने तक, छोटे समय तक जितने विचार मन में आते हैं, उसकी संख्या 35,000 से 40,000। और बाई चांस यदि वो ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का मरीज है, तो ये फिगर डबल। ये साइंटिफिक रिसर्च है, मेडिकल आईसीएमआर की। और यदि आप रात को सो रहे हैं और सोते समय इफ यू वांट टू काउंट कि दिन भर में मैंने क्या क्या सोच डाला, क्या क्या विचार जनरेट हुए, कैन यू काउंट देम? आप उसको 35 से 40 हजार को सोच रहे। लाइट बंद कर देते हैं, जगते रहते हैं, तो दिन भर यही आता है कि कहाँ गए, क्या हुआ, क्या खाया पिया। इतने थॉट्स को हम काउंट नहीं करते। इसलिए जॉरी हैज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ABCD और 4। सबसे ज्यादा थॉट्स किस कैटेगरी के हम लोग? 4 कैटेगरीज हो गई। अब 4 में से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, which category has the maximum number of thoughts which is being waste thought, व्यर्थ का विचार। नंबर 2 आता है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव, हमारी डॉटर मान लिया कोचिंग पढ़ने गई है और 7:30 बजे उसको लौट के आना था, नहीं लौट कर आई, तो इमीडिएटली क्या होगा? पॉजिटिव थॉट तो आएगा नहीं, नेगेटिव ही थॉट आएगा। क्या हो गया? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लाइक दिस। तीसरा नेसेसरी थॉट, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटीज है, यूनिवर्सिटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो हमारा उससे संबंधित विचार करना। या मुकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इसको कैसे रन किया जाए, इसके बारे में सोचना इनकी मजबूरियत है। आप अब जिसका सबसे ज्यादा उपदेश दिया जाता है या टीचर्स या फादर्स बोलते हैं पॉजिटिव विचार रखना चाहिए, सकारात्मक चिंतन करिए, न्यूज़पेपर में और सब जगह बाबा देते रहते हैं, वही सबसे कम। उसका रीजन ये है कि हम सब लोग नीचे से लेके ऊपर तक निगेटिव एनर्जी से भरे हुए। आप किसी भी व्यक्ति से, अपने सुपरवाइजर से या अपने घर, कोई भी एकेडमिशियन है या कोई भी आप काम कर रहे हो, आप कोई काम को, मैं अपने ऑफिस के बाबू को कहता हूँ ऐसे, जब मैं आया था यहाँ 2006 में एज ए प्रोफेसर, तो मैंने इन लोगों को कहा नहीं ऐसे से ऐसा कर। जानते हो क्या रिप्लाई होता है? अरे पता नहीं कहाँ के प्रोफेसर आप आए हो, मैं 40 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो निगेटिव। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव इनकल्केटेड नीचे से लेकर नेगेटिव एनर्जी से हर आपको इसको वॉश आउट, राइट? योर जर्नी शुड बी from due to that, for that you will be a competent researcher। आप जिस भी डिसिप्लिन के हैं, जिस भी डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च के लिए चाहे स्टैटिस्टिक्स पढ़े पढ़े, आपकी कॉम्पिटेंसी हो। ऐसा नहीं कि MSc कर लिया, एडमिशन पा गए, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, एक सुपरवाइजर बन गया, PhD लिख दे। PhD कितने रिसर्च कितने प्रकार की होती है मालूम है? बताया क्या 2 दिन? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या इस तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं बताया। There are 4 types of research. One is for PhD work। रिसर्च करेंगे, PhD अवार्ड हो जाएगी अपने नाम के आगे, डॉक्टर।
दूसरा रिसर्च फॉर टीचिंग, पीएचडी हो जाएंगे किसी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जॉब मिल जाएगा टीचिंग के लिए। रिसर्च फॉर बुक पब्लिशिंग, किताब जो लिखी है हमने वो मेरठ या आगरा प्रकाशन से पब्लिश करा देंगे, उसका काम हो जाएगा, तो डिग्री पर रॉयल्टी। एंड माई रिसर्च इज दैट रिसर्च फॉर, मुझे अपने लिए रिसर्च कर, एंड देयरफॉर वी शुड बी कॉम्पिटेंट इन आवर, why I am sharing all these slides before discussing the statistical techniques, competency का मतलब समझते हैं आप लोग? अक्सर ये कहते हैं ना, फलाना स्टूडेंट बहुत कॉम्पिटेंट है इस काम को करने के लिए, जैसे इन लोग बैठे हुए हैं, तो ये दे आर वेरी कॉम्पिटेंट कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे, तो उनके सबने इनको लिया। और भी तो तमाम पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई दूसरा उदाहरण है, कोई पीछे बैठे हुए हैं तो उनको इन्होंने सामने का आप लोगों का लंच वंच करें। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि फलाना व्यक्ति इस काम के लिए कॉम्पिटेंट है या इस काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं, सक्षम नहीं। अक्सर हमारे सुपरवाइजर ही कह देते हैं, भाई तुम क्या रिसर्च कर रहे हो, तुम रिसर्च करने के योग्य ही। अक्सर ना इरिटेट होकर हम लोग कहते हैं, इसका मतलब समझते हैं कॉम्पिटेंसी के देयर आर फोर कंपोनेंट्स। नंबर वन इज एजुकेशन एंड नॉलेज, जो आप लोग ले चुके हैं, नॉलेज आपको आ गई उस सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी है, और या एजुकेशन मिल गई आपको। अब मान लीजिए मुझे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बहुत बढ़िया आता है, लॉ ऑफ रोटेशन मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, तैरने का सिद्धांत, और मैं एग्जाम में यदि कंपटीशन में या फिजिक्स में कहीं पर भी बहुत अच्छी तरीके से मुझे लॉ ऑफ रोटेशन और फिजिक्स का प्रिंसिपल आता है, एग्जाम में मैं देता हूँ 100 में 100 नंबर हमेशा, जस्ट एजुकेशन मेरी इतनी अच्छी है। आप लोग मुझे क्या करिए, उठा के गोमती नदी में जाके फेंक दीजिए, तो इसको तो लॉ ऑफ रोटेशन बहुत अच्छा आता है, प्रोफेसर को ये तो अपना तैर के किनारे आ ही जाएगा, रिजेक्ट पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे नॉलेज हम जितनी भी एक्वायर कर लें और अपने को एजुकेशन ले लें, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग की स्किल नहीं सीखेंगे, तब तक हम जो है कहते हैं किनारे नहीं आ पाएंगे। तो सेकंड कंपोनेंट इज ट्रेनिंग और स्किल। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे एक फ्रेंड है बिल्डर लखनऊ में, वो गोमती नगर में एक 15 माले की फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, 15 स्टोरी। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, यार कोई सिविल इंजीनियर पांडे हो तो बताओ, तो मुझे फ्लैट्स बनाने हैं। हमने कहा तेरे लिए क्या प्रॉब्लम, हम लोगों को लखनऊ वालों को क्या, यहाँ से 70 किलो 80 किलोमीटर जाइए, आईआईटी कानपुर बेस्ट रिसर्चर्स प्रोड्यूस करता है, इस साल का जो बीटेक का टॉपर स्टूडेंट है सिविल सर्विस, उससे बढ़िया सिविल इंजीनियरिंग का कोई आईआईटी कानपुर से बढ़िया स्टूडेंट नहीं है। उस टॉपर को आप ले आइए 2024 में, जिसने पास आउट किया है। इज इट पॉसिबल कि जो टॉपर स्टूडेंट था वो ले आए, उसको अच्छे पैकेज में दे दिया और कहा कि बर्बाद तो नहीं बना। तो हियर इट लाइज द एक्सपीरियंस। उस 15 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए।
स्टार्ट करें? शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप? 15 साल का एक्सपीरियंस आपको लेना है, मान लीजिए। अक्सर आप लोग अप्लाई करते हैं तो उस समय भी यही होता है कि आप देखते होंगे ना एडवर्टीजमेंट की 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 2 साल का। अनुभव मांगते हैं, अनुभव बहुत जरूरी। अब ऐसा नहीं है कि Amazon.com या फ्लिपकार्ट से आपने एक किताब बुक करा दी जिसका टाइटल था 15 साल का अनुभव, तो आ जाएगी वो किताब। दूसरे दिन आपने रात भर में पढ़ डाली। क्या 15 साल का अनुभव आपको उस किताब के पढ़ने से आ जाएगा? 15 साल का अनुभव 15 साल में ही आए उस रिसर्च कर। तो देयर फोर it is very important. The first is education or knowledge. Second one is skill or training. Third one is experience. जैसे जैसे आप JRF से SRF हो जाते हैं तो आपका experience। And fourth one is very which I want to say. ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले यही 3 बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा चौथा होगा। दैट इज एटीट्यूड। यदि मेरा एटीट्यूड ही नहीं है काम करने का, फिर क्या है? रिसर्च करना, हमको रिसर्च करनी ही नहीं है। या इस वर्कशॉप में हम आ गए या इस प्रोग्राम में आ गए FDP में, तो हमें तो एक सर्टिफिकेट चाहिए था। चाहे वो 9 बजे का लेक्चर हो, हम 11:30 पर आ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? अब समझ रहे हैं? दे आर देयर एटीट्यूड इज नॉट, दे हैव गिवन वॉट एवर द रजिस्ट्रेशन फीस, उन्होंने अपना जमा करा लिया, दे विल गेट ए सर्टिफिकेट। या अपना आगे दिखाएंगे कि हमने यहाँ पर ये FDP 7 दिन का या 5 दिन का। देयर एटीट्यूड इज नॉट लाइक दिस। इसीलिए जितने पार्टिसिपेंट्स मैं बात रहा हूँ तो मैं उनसे परमिशन लेके कर रहा हूँ कि शुड आई कंटिन्यू और डाउन कंटिन्यू। दिस इज द वे। दीज आर द 4 components फॉर it. Now, in the next slide, these 4 are the important aspects. Strength, we should know strength, weakness, opportunities and threat. हमें जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। जैसे आप लोग इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज कि आप इतने स्पीकर से सुनेंगे तो आपकी कुछ डाइवर्सिफाई होगी। अक्सर अब थ्रेट्स क्या मिल रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं। अक्सर मैं मजाक पे एक जोक कहता रहता हूँ कि माई वाइफ इज माई स्ट्रेंथ बट माई नेबर्स वाइफ इज माई वीकनेस। एंड इफ माई वाइफ नेबर इज outside of his home, that is an opportunity. And if he is inside his home, then that is a threat. लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट जोक है, आपको थोड़ा यहाँ पर नो पोजिशंस मैंने लिखे हैं। देयर इज ए नो टर्निंग बैक। अब आप लोगों के लिए वापस जाने का समय नहीं आता। आज 29 तारीख है, इस समय 9:58 हो रही है। तो आज 29 मई 9:58 AM दोबारा नहीं आएगा। अब वो जमाना नहीं है। दे थिंग्स विल नॉट गो बैक टू द स्टेबल पैटर्न ऑफ द। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को कह देते हैं या रिसर्च स्टूडेंट्स को या अपने क्लास में, जब तुम्हारे जमाने में थे, तुम्हारी उम्र के थे, तो हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे, ऐसे नोट्स बनाते थे। अक्सर मैं अपने केबिन में 20 साल पर 80 के नोट्स बच्चों को दिखा, या ऐसे ऐसे हम लोग लिखते थे। अब वो जमाना नहीं रह गया। आपको नई टेक्निक्स आ गई है, नए डिवाइसेस आ गई है, नई टेक्नोलॉजी चेंज एट द स्पीड ऑफ थॉट। जितने रेट से हमारे विचार बदलते हैं उससे आजकल हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है। अक्सर हमारा बेटा हमसे कह देता है, या मैं उसको बोलता रहता हूँ जब इस तरीके की बातें, जब तुम इतने बड़े थे तो मैं ये करता था, मैं ऐसे पढ़ता था, ऐसे गुरु जी के पास जाता था। तो कहता पापा बस रुको, आपका जमाना तो वो गया,
अब वो जमाना नहीं रहा। नई लड़ाई पुराने हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती। जस्ट इमेजिन, यदि हम अपने आर्मी मैन है, पुलिस वालों को लाठी या बंदूक भाले दे दें, क्या हम लड़ाई जीत पाएंगे? Not at all। अब वो जमाना नहीं रह गया है। सबसे उस जमाने के लोग अलग थे, उस जमाने की स्टाइल टीचिंग की अलग थी, हम लोगों का काम करने का तरीका अलग था। और आज दूसरा प्रकार के प्रोफेसर या टीचर से या फैकल्टी आ गए, उनका एक अलग तरीका है, मोड है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस समय इंटरनेट है, आज इंटरनेट, even in a fraction of second you can get a lot of information through chat करके। आप तो चैट जीपीटी आ गया, आपको वो भी देख, आपको सॉल्यूशन डालना है और उसका वो पूरा बना के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई नाउ टू प्राइमरी यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो आप शुरू से पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमने बात करी, द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, वो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यू ड्रॉ कंक्लूजन्स about the whole population on the basis of the information contained in the sample। हम तो क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई फीवर वीवर आया, तो आया, हम लोगों को जब बीमारी होती है तो हम अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, है ना। फिजिशियन कहता है आज आपकी दवाई, ये टेस्ट है, हीमोग्लोबिन कितना है, टीएलसी कितना है, डीएलसी कितना है आपका है, ब्लड प्लेटलेट्स है, ये पैथोलॉजिस्ट से जाके किसी ये रेकमेंड कर दे रहे हैं, वहां से आप करा दें, रिपोर्ट ले आए, ठीक है। मैं पैथोलॉजिस्ट के पास गया, डॉक्टर साहब ने ये उनको दिया है टेस्ट करने के लिए, प्लेटलेट्स कितनी है, काउंट करके बता दीजिए रिजल्ट्स के। मेरा सर आप तो नहीं बता पाएंगे, आज हम बहुत बिजी हैं, आप अपना सारा ब्लड निकाल के इस जार में रख दीजिए, कल मैं काउंट करके बता दूंगा। इज इट पॉसिबल? हम लोग दैट्स व्हाई दे टेक सैंपल या इंजेक्ट लगा के एक सैंपल, उस सैंपल के आधार पे जो पूरी पॉपुलेशन पे आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड, मैथमेटिक्स वाले को यदि एवरेज हाइट लखनऊ यूनिवर्सिटी की निकालनी है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी वो करेगा, वो फिर नंबर से डिवाइड करेगा। लेकिन स्टैटिस्टिशियन ऐसा नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि इसीलिए जो मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने दो प्रकार के स्पेस या सेट्स बनाई हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सैंपल स्पेस एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट मीन्स दैट if we can count the total number of elements or total number of members in that space, we say that it is a finite. But infinite means that there are infinite set of stars, set of hairs. So that is in. But the statisticians have given three sets. In between them, countably infinite samples. यानी मतलब हमको इनफाइनाइट तक जाना पड़ सकता है, वी हैव टू काउंट, लेकिन मुझे उससे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पाने के लिए काउंट करते रहना पड़ेगा। ऐसा कोई एग्जांपल आपको कोई ध्यान में आ रहा है जिसका स्पेस इतना बड़ा? टॉस ए कॉइन अंटिल हेड अपीयर्स, एक कॉइन को हम उछालते रहेंगे जब तक कि हेड ना आए। हो सकता हो पहली बार में हेड आ गया तो एक्सपेरिमेंट क्लोज हो गया, हो सकता है दो बार में, राइट, दो बार में हो सकता हो तीन बार, हो सकता हो हम साल भर करते चले जा रहे, नहीं हो रहा है, हो सकता हो पूरी जिंदगी में करता रहा, फिर नहीं आता रहा, हेड आया ही नहीं, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू। मंडे जा रहे हैं तो हम अपने बेटे को कहेंगे ये लो भैया सिक्का, अब तुम तो एक्सपेरिमेंट जारी रखना जब तक कि हेड ना आ जाए। दिस इज द नेचर ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो स्टैटिस्टिशियन में जब आप लोग डेटा एनालिसिस करोगे, उस समय इस स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंस लगती है। या इकोनॉमिक्स वाले हैं जो हिल
प्लीज साइड का, हिमाचल का, उत्तराखंड का या जेएनके का जब आप सर्वे करते हैं, उसमें ये काम आता है जहां पर लेबेक मेजर की जरूरत। इंस्टेड ऑफ मैथमेटिशियन जो है वो रीमान इंटीग्रेशन की रीमान तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चनर जो है वो शेड्यूल वो बनाते हैं। देयरफॉर दिस इज द कॉन्सेप्ट्स और सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो मैंने आपको देखा। Overview of statistics describing data then making inferences from samples. Visual display जो अभी मैंने बताया था मैडम फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोफेसर ने दिया था, ये एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स अगर this is the new definition of statistics is a getting informed decision, is a science of informed। तो पहली डेफिनेशन थी वो सारी बता पूरे वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप एंड अमेरिका में यही डेफिनेशन। एक्चुअली अमेरिकन यूएस सिस्टम, एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, हम लोग अमेरिका की बड़ी कॉपी करते हैं। अभी भी आप जिस भी डोमेन के हैं उसके सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अमेरिकन प्रोफेसर को फॉलो मत करिए। इफ ही इज अमेरिकन, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इमीडिएट चल जाता है। जैसे अमेरिका ने आज मान लिया ये मोबाइल बनाया और इधर के सब लोगों ने पसंद कर लिया, परचेज कर लिया, और इधर के दो लोगों ने कर लिया, उधर के तीन बेंच वालों ने नहीं। वो तो क्या करेगा, जैसे ही कंपनी को पता चलेगा, इमीडिएट उसका जो एल्गोरिथम है, ईएमएल एल्गोरिथम से अगर हम लोग यही करते हैं, वो अमेरिकन तुरंत बदल देगा एक नई मोबाइल से। अब देखिए डेली एक मोबाइल, चाहे एप्पल का हो या किसी भी कंपनी का हो, नया, यही चीज वो एकेडमिक्स में आप और पास आपको यदि कॉन्सेप्ट समझना है तो जर्मन को फॉलो करिए या ब्रिटेन से। जर्मनी की कॉन्सेप्ट देखिए इतनी जल्दी चेंज, बहुत इकोनॉमिक्स वाले अधिकतर बैठे हुए हैं जर्मन इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो जो मॉडल्स उनके उस समय में चल रहे थे वो आज भी वो यूज कर रहे हैं, उनकी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं। तो दिस इज द बेसिकली न्यू डेफिनेशन जो अमेरिकन प्रोफेसर धीरे धीरे, अभी प्रिंसटन में 2-5 साल पहले गया था, मैं देखा वो छुप छुप कर ये डेफिनेशन। तो आप लोग जब आएंगे 5 साल बाद प्रोफेसर बनेंगे तो आप यही बेसिकली स्टैटिस्टिक्स is a way to get informed decision, or it is a science of getting informed decision। Here आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, डेटा लेते हो, व्हाट इज डेटा, विच इज फैक्ट्स, स्पेशली न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड टुगेदर, रेफरेंस और इंफॉर्मेशन। देन टेक्निक्स लगाते हो जो आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम लोग बोलते हैं, एंड देन वी गेट इन्फॉर्म। आज जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो उसी डेटा से होती है। एडमिशन हो रहे हैं या रेलवे का रिजर्वेशन हो रहा है या बैंकिंग सेक्टर का या जीडीपी का, हम लोग उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज। जैसे हम लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए है ना, आपने सुना होगा महंगाई का 4% जनवरी में, 4% जुलाई में लगे, 4%। तो उसका वो महंगाई का या एक जीडीपी का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ऐसे ही हम पुलिस वालों को हर महीने ट्रेनिंग देते हैं जो आईपीएस नए होते हैं, तो यही एसपीएसएल सॉफ्टवेयर का जो सेकंड आपने हम बात करेंगे, वो एफआईआर दर्ज होती है ऑनलाइन 2014 से। उस ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एफआईआर से वो पुलिस वाले हम लोगों से सेडिशन से ये जानना चाहते हैं किस डिस्ट्रिक्ट का क्राइम सबसे ज्यादा रहा, या कहाँ पुलिस की परफॉर्मेंस हो। एक्चुअली पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को 8 जोन में बांट दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के जो पुलिस सेक्रेटरिएट है, और उसके बाद 18 रेंजेज हैं। 18 रेंजेस के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है, और 75 डिस्ट्रिक्ट से 1536 1536 पुलिस स्टेशन। हर थाने में एफआईआर लॉज, और लॉज होने के बाद जो क्या कहते हैं वो, और उनका नेट सर्वर पे आ रहा था, वो डेटा हम लोगों से वो शेयर करते हैं, और स्टेटिस्टिकल डिवाइस लगा के हम उनको बताते हैं कि नहीं इस डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या इस पुलिस स्टेशन का बहुत खराब है, तो आप फिर वो पॉलिसी बनाइए आप।
कि किस दरोगा को या किस लेडी इंस्पेक्टर को वहां पोस्ट करना। तो दिस इज द रियल एंड दिस इज द टैक्सोनॉमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ढांचा बनता है ना जिससे, वो यही है। यूनिवेरिएट एक वेरिएबल लेकर जब आप चल रहे हैं, दो वेरिएबल लेकर चल रहे हैं तो बाईवेरिएट, देन मल्टीवेरिएट। तो सेफ सेंटर स्प्रेड यूनिवेरिएट पे देखते हैं, बाईवेरिएट पे कोरिलेशन रिग्रेशन आप लोग यूज करते हैं, और मल्टीपल पे मल्टीपल रिग्रेशन हो सकता हो प्रोफेसर मसूद आपको बताएं या कोई और स्पीकर बताए। फिर टेस्ट करते हैं, ये अभी नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे टी टेस्ट है, एनोवा वगैरह। There are three important things which I want to share is that जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो उसका सेंटर क्या है। तो आप मीन या 40 की स्पीड से गए 60 से, जो एग्जांपल मैंने बताया था, उसको मेजर करने के डिफरेंट फॉर्मूले या टूल्स है। तो मैथमेटिशियन विच टूल इज टू बी यूज्ड इन दैट सिचुएशन, दैट इज टू सेंटर क्या है, डेटा कैसे डिस्पर्स हो रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, फैल रहा है, और उसका शेप क्या बन रहा है, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब करती है। दीज आर द थ्री। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट जब हम सबसे बड़ा हम लोग आज के रिसर्च में करते क्या है, चाहे वो किसी भी उसके हो, हम लोग अपना डेटा कैप्चर किया, मतलब जो भी क्वेश्चन भरा और ऑब्जर्वेशन लैब के लिए तुरंत अपने सुपरवाइजर का सर ने डेटा कलेक्ट कर लिया है, इसको एनालाइज कर, उन्होंने बता दिया स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट या फलाना स्टैटिस्टिशियन है मैथमेटिशियन की बात सुनिए, आप उसको 2000-5000 रुपए देते हो, वो आपको एनालाइज, उसका मतलब आप, और आप बहुत बढ़िया बढ़िया टेबल्स और वो सब। मेरा आपको कॉन्सेप्चुअली ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का आप देखिए, जो भी वेरिएबल आपका अंडर कंसिडरेशन है, तो ट्राई टू, यदि उसमें जिगजैग आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास की हाइट में देखूं, एक ऑब्जर्व कर रहा हूं 5 फीट 4 इंच के करीब, जस्ट मान लिया हमने निकाला, और मान लीजिए आप ही की तरह एक रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट होता जिसकी हाइट अमिताभ बच्चन से 1 फीट ऊपर, जस्ट इमेजिन, ऐसा भी हो जाता कि एक स्टूडेंट यहाँ कहीं प्लेसमेंट बैठा होता जिसकी हाइट 8 फीट, तो आपका मीन क्या होता, 5'4" की जगह। अब उसको हटा तो नहीं सकते। जब इस तरीके का डेटा आप अपने सुपरवाइजर से या अपने जो भी जिनके अंदर साथ काम कर रहे हैं, वो कहता है यार ये ऑब्जर्वेशन जो है डिस्टर्ब कर रहा है पूरे डेटा, इसकी वजह से हमारा मीन, हम तो क्या करते हैं तुरंत उसको रिमूव हो गया, यार इसको हटा दो, दूसरा कोई और कलेक्ट कर सकते हैं, यही तो करते हैं ना प्रैक्टिस में। इट शुड नॉट बी डन बाय द इन बाय, दे आर ट्रीटेड एज एन आउटलायर, उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी जब एसपीएसएस पे हम बताएंगे तब आपको एनालिसिस पे थोड़ा लास्ट में फ्लेवर देंगे कि इतने 500 का दिया, 499 वैलिड थे, एक हमारा। तो इस तरीके का एक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, जस्ट सी दिस, ऑल आर सीट्स, लेकिन एक बीच पे देखिए वो, when I was traveling from जयपुर टू उदयपुर, तो मेरे को तो लेने का शौक है, तो मैं दिस बोर्ड को यदि हम शामिल कर लेंगे तो हमारी एनालिसिस के रिपोर्ट, इट इज ट्रीटेड एज एन आउटलायर। और आउटलायर भी दो प्रकार के मेथड होते हैं, या जिससे हम लोग बताएंगे या आपको दिखा दे रहे हैं, मॉस्किंग मेथड एंड स्वैम्पिंग। मॉस्किंग मेथड जैसे हम क्लास ले रहे हैं, आप लोग भी क्लास लेते होंगे या लेक्चर देते होंगे, मान लीजिए दो स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, डिस्टर्बेंस हो, तो हम लोग क्या कहते हैं एज ए टीचर, स्टैंड अप, गेट अप, गेट आउट, ये तो करते हैं। वो जब लड़का बाहर, अब मैं फिर इधर बोर्ड पे लिखने लगा, जब वो जा रहा है जिसको मैंने बाहर निकाला है, तो दूसरे को आंख पर देता है, तू कर, वो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जब दूसरे को मैं फायर करता हूँ कि स्टैंड अप एंड गेट आउट, तो वो जब जा रहा होता है तो जैसे ही मैं मुड़ा तो वो तीसरे को इशारा करता है।
आंखों पे। तो एक गया, दूसरा न्यूसेंस क्रिएट करने, तीसरा करना। I was delivering lecture of this outlier techniques in यूपी पुलिस। तो डीजीपी बैठा उत्तर प्रदेश का ओपी सिंह वह सिटिंग डायल 100 ऑफिस में, मैं वहां पर था। लेक्चर भी 2-3 साल पहले की घटना। तो पुल अब उत्तर प्रदेश का पुलिस, हमने कहा हो गया यार, डीजीपी बैठो। उसने कहा सर मेरा डेटा नॉर्मल है, एग्जैक्टली मतलब यूपी पुलिस का डेटा। हमने कहा पुलिस और पुलिस का डेटा नॉर्मल, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के। बड़ा उन्होंने कहा नहीं 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 आप करते हैं जो। तो हुआ क्या, जो ये मेथड हम आपको सैंपलिंग का बता रहे हैं, जब डेटा एनालाइज करा है तो एक हम लोगों का टेक्निक होता है, मैं आपको बताऊंगा, बॉक्स प्लॉट है, जिसके द्वारा आउटलायर। तो एक 75 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉक्स प्लॉट की रेंज के बाहर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरदोई आ गया। तो थोड़ा सी उनको वो लगा जैसे ये बैठे हुए हैं वैसे वो भी बैठा हुआ था। बोला था पांडे जी इसको हटा दीजिए 74। मैंने 74 का बनाया। तो कंप्यूटर में कितना टाइम लगता है स्पेसेस में, तुम ना के ये घटा दिए, डिलीट कर दिए, 24 को बनाया। पता चला रायबरेली निकल आया। रायबरेली को हटाया तो देवी पाटन निकल आया। यू विल नॉट बिलीव कि 75 डिस्ट्रिक्ट से हटाते 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 वी restricted ourselves in only 37 districts। सिर्फ 37 डिस्ट्रिक्ट बचे, तो उनका फिर कम हुआ। उन्होंने कहा सिंह साहब देख लो ये सिचुएशन। वो आप लोगों की भी जब डेटा कलेक्ट करोगे इस तरीके की सिचुएशन आती है। वैसे अभी एक एग्जांपल बताएंगे, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। उनको आईसीसीआर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था 2008 में, मैंने आया था। हाउ आई सेव्ड हिम फ्रॉम हिज कैरियर, मैं बताऊंगा आपको। दूसरा जो अमिताभ बच्चन वाला एग्जांपल बताया, वॉच पहन के बैठ गया वो, जैसे होता ना बेंच में। तो हमको एक लग रहा है 5 फीट 4 इंच है, लेकिन एक आ गया जो कि कहते हैं जिसकी हाइट 8 फीट है, अमिताभ बच्चन से। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके बैठ, जिससे कि हम इंसाइट पर नहीं। तो इसको बोलते हैं मॉस्किंग, यानी कि इस गोट को आप मॉस्क पहना दीजिए, मतलब बकरे की खाल पहना दीजिए तो हो जाए। So you have to identify these type of things which are through histograms and box plots हम लोगों ने कहा है। And this is the very important structure, that is the role of knowledge। इतना बड़ा डेटा, दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोगों को होता है, तभी हम लोग कहते हैं कि सारी एनालिसिस करी जानी चाहिए, या आप लोग भी करते हैं। एंड दिस इज द कर्व। इफ your data is 3 to -3, then standard deviation, and you say that your data is 97% long. If it is ranges from -2 to +2, then we say that 95% data is normal, and we you apply the t-test, f-test, or chi-test, chi-square test, etc. And if it is -1 to 1, then only 68। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप जरा मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में इतना डेटा है, एजुकेशन सेक्टर का डेटा है, हेल्थ केयर का डेटा है, इकोनॉमिक्स का डेटा है, रेलवेज का है, एविएशन का डेटा, विच डेटा इज सपोज टू बी द नॉर्म, जो नॉर्मल है। एक डेटा मैं बता रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, चाहे इतनी स्टेट्स है, 29 स्टेट्स का डेटा इसी डोमेन्स के ले लीजिए, या बैंकिंग सेक्टर का ले लीजिए, कोई डेटा आपको ऐसा लगता है जो स्टैंडर्ड कर्व इस तरीके का ले रहा है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल कर्व कहते हैं। एनी डेटा, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो, हेल्थ केयर का डेटा हो, एक डेटा इंडिया के अंदर नॉर्मल, मालूम है? नहीं। कौन सी? there is one single data of in our country which is exactly 99.7%, मुंबई डब्बा वाला।
नाम सुने आप? मुंबई शहर में सवेरे 10 बजे 40 से 50 लाख लोगों को नंगे पैर लोकल में चल के, आपने देखा होगा, नहीं तो गूगल में डालिए, उनके ऊपर मूवीज भी बनी है। लेकिन लंच बॉक्स से 10 बजे पहुंचा का जो काम करते हैं, उनका डेटा मैंने एनालाइज किया है, दैट इज एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कोई हिंदुस्तान का इतने बड़े बड़े स्टेडिशियन बैठे हुए हैं या इतना पीएमओ में बैठा हुआ है ना, कोई डेटा। और होता क्या है, हम लोग सब वही का। ये एग्जाम्पल यदि आप देखिएगा, पिछले 50 वर्ष में उनसे सिर्फ 3 बार मिस्टेक हुई है, और गलती भी ऐसी नहीं थी। ए का टिफिन बी के पास पहुंच गया, बी का टिफिन सी के पास, सिर्फ इतना अंतर था। और अंतर भी ऐसा आया कि जो बी का टिफिन सी के पास पहुंचा, तो उसने चपाती 4 कही थी, इन्होंने 3 कही होगी, तो 4। और जो दाल थी वो इनकी अरहर की दाल थी, इनकी मलकी की दाल थी, वो इंटरचेंज। आप सोचिए कितना प्रिसाइजली। हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कहते हैं हमको आईएसआई ब्रांड का कुकर चाहिए या फ्रिज चाहिए, या आईएसओ 2009, या अब तो खैर 2015 हो गया है, आईएसओ स्टैंडर्ड that follows the what is this signal limit or 3 signal limits, तो हम लोग देखते हैं। तो ये मुंबई डब्बा वाला, इन्होंने अभी पूरे महाराष्ट्र का फेमस डेटा है, उसको मैंने एनालाइज किया था, दैट इज एग्जैक्टली नॉर्मल। एंड इफ योर डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, देन यू कैन अप्लाई टी टेस्ट, एफ टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज से आप ये जब डेटा कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, पहले आप उसकी नॉर्मलिटी चेक कर लीजिए, देन यू प्रोसीड फॉर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एफ टेस्ट या रिग्रेशन एनालिसिस, जो भी आपको कैसे टेस्ट करते हैं। केएस टेस्ट एसपीएसएस में होता है, यूनिवर्सल कार्लिंग मिनिटैब में होता है, सफारोविच टेस्ट आपका जेएमपी पे होता है, लाइक दिस डेटा है। नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये मालूम है आप, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आपको बताया गया होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल की मतलब है, इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक of an individual or entity. A variable can differ values for different individuals. Variable can be categorized quantitatively. यदि हम ये कह रहे हैं मेल और फीमेल, ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस प्रकार का जब हमारा ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, तो वो नॉमिनल स्केल है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, डू यू स्मोक, सर से पूछे, तो इनका उत्तर क्या होगा, यस या नो। तो मेरे का कोई स्केल नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी, इन्होंने यस कह दिया या नो कह दिया, इट इज क्वाइट। दिस मींस दैट वी आर हैविंग अ मेजरमेंट ऑन द नॉर्मल। नंबर 2, ऑर्डिनल। जैसे हम लोग, आप लोग फॉर्म भरते हो या इनकम दिखाते हो अपने पेरेंट्स की, या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, लाइक दिस, तो या कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट दिया, स्मोकिंग शुड बी बैंड इन सिनेमास, सिनेमा हॉल में धूमपान करना वर्जित होना चाहिए, मेरा मुल्क है। अब इस स्टेटमेंट से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए आपका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो आप, कुछ लोग कहेंगे इट इज सेटिस्फाइड, कुछ कहेंगे स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, कुछ कहेंगे डिससेटिस्फाइड, कुछ कहेंगे स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड। तो मेरा जो हुआ वेरिएबल, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी कि ऑर्डिनल स्केल पर। लेकिन सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के बीच का कितना डिफरेंस है ये नहीं मालूम है, दैट इज एन ऑर्डिनल। थर्ड वन, जैसे यहाँ का टेम्परेचर करीब 25 डिग्री है और बाहर गए 50 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे आउटसाइड टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ, है ना, 2 गुना।
या यहाँ से बाहर का जो है टेम्परेचर है 40 है, मान लीजिए यहाँ 25 है, 15 का है, दैट इज इंटरवल स्केल। जब आप लोग भी अपने वेरिएबल्स को मेजर करेंगे तो इसी तरीके से आप मेजर। फोर्थ वन इज रेशियो स्केल। रेशियो स्केल की खूबियत क्या है कि इट जब एब्सोल्यूट जीरो की बात, जैसे आप लोग जानते हैं टेम्परेचर हम लोग 4 प्रकार के स्केल्स पे मेजर करते हैं, देखा था आपने? थर्मामीटर है, सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, न्यूटन एंड केल्विन। और इनका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी है F-32/9, है ना, इस फॉरेनहाइट का फिर सेंटीग्रेड बाई 5। यदि हम जो केल्विन स्केल है इसको रेशियो पर सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट और जो तीसरा है न्यूटन, वो इंटरवल में स्केल करता है। ये एक्चुअली दिस डेफिनेशन किसने दी थी मालूम है? एसएस स्टीवेंसन, एसएस स्टीवेंसन, he developed this skills। और 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। यदि केल्विन को सेंटीग्रेड में बढ़ लें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड निकल कर आता है उसको। तो ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो जिस स्केल पे या जिस डेटा कलेक्शन पे हमारा जीरो वैल्यू आ रहा है, ये जीरो नहीं कि खाली हाइट या इस तरीके, उसमें हम रेशियो स्केल रखते हैं। फिजिक्स ये कहते हैं 0 डिग्री केल्विन का मतलब है 0 डिग्री केल्विन कब कहेंगे, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड रखने वाला ऐसा कोई भी पदार्थ इस यूनिवर्स में आज तक नहीं हुआ है कि जिसका बॉडी जो है वो 0 डिग्री के या -270। तो दैट इज एक्मोडेटिंग एक्चुअली। और आजकल जो आप अभी हम एसपीएसएस खोल के देखेंगे या स्टेटा या जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग इनबिल्ट देखते हैं उसमें क्या किया गया है कि जो हमारे 3 स्किल रखे कंप्यूटर प्रोग्राम पे नहीं करा भाई, उनकी भी ड्रॉबैक्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन सॉफ्टवेयर में कमियां क्या है। भी बहुत बढ़िया है एनालाइज करने के लिए। नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल होता है और इंटरवल और रेशियो को उन्होंने मर्ज कर दिया है, उसका नाम उन्होंने दे दिया स्केल। नॉमिनल होगा वेरिएबल या ऑर्डिनल होगा या रेशियो। दिस इज द सिचुएशन। तो देयरफॉर दिस इज द स्टोरी of measurement of scales is very important for all the research students। आप लोग इसको बड़ा मुश्किल लेते हो जब आप हमसे या हमारे स्टडीशियंस से एनालाइज कराने आते हो, आपको खुद नहीं मालूम है कि आपने किस तरह, जब आप लोग क्वेश्चनायर बनाते हो अपना, है ना, कि इसको हम ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे, इस वेरिएबल को ऐसे ऑब्जर्व कर लेंगे, तो आप उसको 1 to 5 स्केल पे भी ले जाते हो, लाइकर्ट स्केल पे, या 1 to 7 इस तरीके। उस समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शॉर्टली आई एम सेइंग दैट if it is the named variable, yes या no, male or female, black and white, then it is a no। If there is an ordinal nature, जो satisfaction level हमने बताया था, satisfied, dissatisfied, strongly satisfied and strong, अब इसका मतलब नेम के साथ ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डिनल स्केल पे हम करें। यदि प्रोपोर्शनल इंटरवल वेरिएबल्स का हम बता रही है कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो माइनस या प्लस करके कर सकते हैं, तो वो हमारा इंटरवल स्केल पे है। एंड कॉन्सेप्चुअली इफ इट इज रेशियो, नेम, ऑर्डर, प्रोपोर्शनल देख लिया, और यदि हम फ्लूट जीरो को भी डेट कर ले पा रहे हैं, दैट इज अवर रेशियो। दिस शुड बी। लेकिन भले ही आप सॉफ्टवेयर में काम करें या अगले सेशन पे हम बताएंगे एसपीएसएस या और तमाम सॉफ्टवेयर में, देयर आर ओनली 3 स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल। रेशियो और इंटरवल को उन लोगों ने कंप्यूटर